होगा सो हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू केट्साले। आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। अगर फिर भी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट्स है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मे आई हेल्प यू सेगमेंट, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड we'll give you the tips and tricks which will help you to do your math exam very well. So here we go. A subject that requires a lot of practice. A subject that becomes a cakewalk for some and gives heebie-jeebies to some. Friends, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। Mathematics is nothing but a poetry of logical ideas. But even great ideas need a proper guidance. आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर अखिलेश कुमार पाठक, who is a mathematics teacher. Welcome to our show, sir. और साथ ही हमारे साथ है माउंट टाउन स्कूल के स्टूडेंट्स, जिनके माइंड में आप ही की तरह इस क्रूशियल टाइम में काफी सारे डाउट और कंफ्यूजन हैं, जिनके सॉल्यूशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि काफी सारे टॉपिक्स होते हैं लाइक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो ऐसे में टाइम डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाए? see in mathematics we have majorly application part. So whatever topics are there, you can take calculus, you can take vector, 3D. These topics require lot of hard work and practice. So what I suggest to you कि आप एक plain chart पे अपना एक पूरा curriculum बना लें कि which topic you have to do in what time, and you require lot of practice in each of the topics. Suppose in calculus we have this integration. Now if you cram up just formulas of integration, then it is very difficult to apply which question, which formula you are applying. You have to understand कि you have to take at least 10 questions of each formula based problem, so that when you cope up with the problem, you will get the problem at an instant in examination. You should get an impulse कि this is the way to solve the problem. That is all is required for you. In maths you can't cram anything, you need lot of practice. I can give you an example कि suppose when you learn how to drive a car, initially you will feel in which gear we have to apply. Suppose you are in very low speed, let us say suppose 10, you have to apply first gear, then you get to 30, you apply second gear and all that. So when you practice a lot, you need not do that. Your hands, your legs automatically tune to that particular aspect. So that is what requires in maths. You need not cram the formulas. Formulas are not meant to be crammed. When you practice a lot, you definitely get synchronized with the concept, and then you can easily achieve success in that. बोर्ड के पैटर्न में देखा गया है काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइक 1 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स। अकॉर्डिंग टू यू कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए एंड हाउ मच इज द ऑर्डर इंपॉर्टेंट? First of all, I think you should do 6 marks problems. The point is that when you write just 3 steps in a 6 marks problem, you will not get full marks in that. In 1 marks problem, only just writing answer will suffice. तो जब आप 6 marks के problem को करें तो वहां पर presentation is very important. The way you are approaching the problem. For 6 marks problem, you must write at least 10 to 15 lines, and that should be in a systematic order. So first of all, you should do the 6 marks problems, then you should do 4 marks problem, and then you can do 1 marks problem. In the last 15-20 minutes, even then you can do those 10 marks, 10 problems of 1 marks each. But for 6 marks problem, you require a lot of introspection. You have to see your presentation, how you present the problem, in what way it is coming out to be, because it must be stepwise. Everything must be done in systematic order. And there is lot of requirement, lot of concern about 6 marks problem. You need to adjust it. At least 10 to 15 steps are required for writing those solutions. Presentation matters a lot in board's paper. You must understand presentation matters a lot. For 1 marks problem, only answer will suffice, because that is mostly objective based problems. So in last half an hour you can achieve those problems easily. हमारे ऑडियंस में भी काफी सारे स्टूडेंट्स आपसे अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, सो लेट्स हियर देयर क्वेश्चंस। As maths require a lot of practice, is doing NCERT sufficient? I am telling you in CBSE we get 70 to 80% questions which are directly from the NCERT, or just some data are changed. So first of all, suppose we can say that you have to do NCERT religiously.
एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल बहुत ही रिचली, बहुत ही ढंग से करना है, एंड देन यू कैन स्विच ओवर टू सम अदर बुक, द हेल्प बुक whichever you can want. But NCERT is the major requirement for scoring good marks in mathematics in CBSE boards. And you should concentrate more on miscellaneous type of problems, because those problems are asked from last 3 or 4 years. We are seeing the pattern कि जो आपकी miscellaneous वाली problems हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम्स में आती हैं और 6 marks problems आती हैं. तो miscellaneous problems पे ज्यादा फोकस करिए. NCERT is must for you. मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम क्या रिवाइज करें, मतलब इतना वास्ट सिलेबस है तो उसमें भी क्या चुनकर रिवाइज करना चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि when we prepare, start preparing for board exam, it is very important कि हम कुछ चीजों को लाइन अप करें. जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं या जो आपके लिए एक तरीके से कैचिंग हो. तो all you have to do कि while studying in school or while doing work on your own, if you get some particular concept that looks important to you, you must highlight that concept in your notebook. Suppose you have solved a particular problem and there is some very good, very nice concept in that. तो just make a point कि आप उसको highlight कर दीजिए. तो when you prepare, when you revise the concept on a later stage, suppose 3 or 4 days back your exam, then you should wrap up the papers and you will see that those concepts automatically comes into a fold. तो it is very important कि जो भी concepts आपको मिलते हैं उन concept को आप highlight करिए throughout your studies. That will help you out in the revision process. तो while revising up the things, you will see कि वो चीजें आपके दिमाग में अपने आप आती रहेंगी, अपने आप आपको पता चलता रहेगा कि ये concept very important है, I have done that at that particular moment of time. मैथ्स के बोर्ड पेपर के लिए सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे हम स्ट्रेंथन करें टॉपिक्स को? Calculus part is majorly important in boards. You can see that the 44 marks are there from this continuity, differentiability and calculus, integral calculus, and 10 marks are set and relations and functions. So in all you have 54 marks which are from calculus portion. And in competitive exams also you got a lot of these problems from calculus portion. So you should master first of all calculus very well. क्योंकि आप वेक्टर 3D भी करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी भी करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कैलकुलस एक अपने आप में बहुत मेजर पोर्शन है. तो यू शुड मास्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यू कैन स्विच ओवर टू दिस वेक्टर 3D. यू हैव लीनियर प्रोग्राम व्हिच इज मेजरली फॉर बोर्ड्स ओनली. तो यू शुड डू सम गुड क्वेश्चंस इन लीनियर प्रोग्रामिंग. ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप बस देख लीजिए कि 2-4 प्रॉब्लम्स किस तरीके से हैंडल होती है. 6 मार्क्स एक प्रॉब्लम आएगा, यू कैन इजीली डू. बट फोकस मोर ऑन कैलकुलस, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी. Focus more on these topics. सर मेरा सवाल था कि कभी कभार 6 मार्क के क्वेश्चन सेट में बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है तो उसमें समझ नहीं आता कि क्या लिखें, और सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से क्वेश्चन आते भी मार्क्स नहीं मिलते. तो ऐसे में क्या करें? When you are giving a subjective paper, it's very natural that the examiner requires to see how you are presenting that solution sheet या answer sheet. बहुत important होता है कि आपका presentation जो है बहुत neat and clean हो, बहुत precise हो, और जो भी लिखा आपने वो अकॉर्डेंस विद द मार्क्स हो. जो मार्क्स आपको उस क्वेश्चन में मिल रहे हैं उसके अकॉर्डेंस में फिलअप हो. तो इट्स बेस्ट वे आउट इज देयर कि जस्ट हैव अ बॉर्डर लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द योर आंसर शीट एंड व्हाटएवर कैलकुलेशन, व्हाटएवर एफर्ट यू वांट टू डू, यू डू देयर. कई बार क्या होता है आसान क्वेश्चन आ जाता है, पता चलता है 4 लाइन में क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, बट यू हैव टू प्रेजेंट इन ऑर्डर कि भाई कम से कम 8 या 9 लाइन उसमें आपके लिखे जाएं, सो दैट एग्जामिनर फील्स कि बच्चे ने वो प्रेजेंट उस हिसाब से किया है जिस हिसाब से उसको रिक्वायर्ड है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब कई बार क्या होता है, देखिए 5x + 4 = 3 लिखा है, तो you need not write कि that 5x = 3 - 4 then x = 1/-1/5. You need not do that. But in question, suppose a question is very easy presentable to you in 6 marks, you write those steps. It's very important that presentation जो है आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन का 4 लाइन में मत करिए, क्योंकि आप 4 लाइंस में 3 लाइन में अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर सोचेगा कि भाई ये अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहा है. देयर इज अ फीलिंग कि भाई ही और शी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन वेल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि हाउ मच मार्क्स द क्वेश्चन इज कैरिंग एंड देन यू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सपोज किसी के अगर 100 मार्क्स मैक्सिमम आ जाते हैं तो इट्स क्रॉस चेक, कॉपी का क्रॉस चेक अगेन. उस मोमेंट पे आपने अगर ओवर कटिंग कहीं कर दिया, कहीं कुछ कंफ्यूजन कर दिया, कहीं कोई डायलेमा कर दिया, तो कहीं ना कहीं यू लूज मार्क्स. और जिस आपका पेपर आता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मैक्सिमम वहां पे मैक्सिमम वे मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें.
सर जैसा कि आपने कहा कि हमें कभी भी कोई जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं रेफर करना चाहिए, तो सर हमारी तरफ से मतलब कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट अपनी तरफ से देना चाहिए? देखो होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं, अगर हम ब्लाइंडली अटेम्प्ट करें उसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो वी विल नॉट एबल टू कैच द प्रॉब्लम। आप किसी प्रॉब्लम को ब्लाइंडली अटेम्प्ट मत करिए। यू हैव अ कॉन्सेप्ट, the teacher in the class or you have a concept in the beginning of the chapter, आपको फॉर्मूले पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप उनके ऊपर थिंक करिए, पॉन्डर ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स। सपोज अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो यू पॉन्डर ऑन इट, ठीक है ना, कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको हमें सेकंड फंक्शन लेना है, जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसे हमें फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसे सेकंड फंक्शन लेना है। तो सी दिस इज एग्जांपल आई एम कोटिंग, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है और वो आप कैसे सीखेंगे। मैंने बोला कि बिगिनिंग में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखे होंगे कि भाई किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। लेटर ऑन व्हेन यू सी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, दोस प्रॉब्लम्स आर जस्ट अ लिटिल बिट ट्विस्टेड। एक होता है कि कोई प्रॉब्लम हमें मिलता है, वो फंडामेंटली हमें स्ट्राइक कर जाता है एंड वी जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम, हमें सॉल्व हो गई। बट एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, या 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक प्रॉब्लम हमारे पास मिल गया। तो जब आपको कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने 4 या 5 किए होंगे, या उन दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने 4 या 5 किए होंगे, तो दैट मोमेंट टू गेट स्ट्राइक ऑफ दैट, किसी भी क्वेश्चन को आप टाइम दीजिए, यू गिव योर टाइम। तो इन स्पाइट ऑफ सीइंग द सॉल्यूशन, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन, यू शुड ट्राई टू फोकस कि उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे दोबारा अटेम्प्ट करें। इवन देन इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, देन यू कैन कंसल्ट योर टीचर और यू कंसल्ट योर कोलीग्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके हिसाब से एक दिन में किसी स्टूडेंट को मिनिमम कितना टाइम मैथ्स को देना ही देना चाहिए, और ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमें सॉल्व करने ही चाहिए? तो इस सिचुएशन में आई फील कि 2 घंटा तो आपको देना ही है मैथ्स को। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम कैसे लाना है, बट आपको लेट नाइट स्टडी नहीं करना है। मतलब एवरीथिंग शुड बी डन बिफोर, मतलब मैक्सिमम आप 11 o'clock तक ले सकते हैं। उससे पहले आप जो भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उससे पहले करिए। कोशिश करिए जिस टाइम में आपका एग्जाम होता है उस टाइम पे आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आए। तो उस मोमेंट पे जब आप प्रिपरेटरी लीव पे हैं, या कहीं ना कहीं आप क्लास के 3 महीने बचे हुए हैं, तो उस मोमेंट पे आप प्रैक्टिस पेपर करिए। बट 2 घंटा डेली देना इट्स नेसेसरी, यू हैव टू गिव। मैथ्स के पेपर में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्पेशली रफ वर्क? रफ वर्क के लिए आपको राइट साइड में एक आप बॉर्डर लाइन बना लीजिए, वहां पे आप रफ वर्क करिएगा। जो आपके 6 मार्क्स प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि आप यू आर गेटिंग 7 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ईच एंड दैट कवर्स 42 मार्क्स, तो यू कैन गिव 1 आवर, मतलब 1 hour 10 minutes यू कैन गिव इन दैट, ठीक है। देन यू अटेम्प्ट 4 मार्क्स प्रॉब्लम्स एंड आई फील कि जो 1 नंबर वाले प्रॉब्लम है उसमें अगर आप आधे घंटे भी लास्ट का दे दोगे तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि वहां पे केवल अगर आप आंसर लिख देते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 6 मार्क्स प्रॉब्लम्स को आपको बहुत प्लान तरीके से करना होगा, उसको आप 1 घंटा 70 to 75 minutes यू कैन गिव एट मैक्स। देन यू कैन गिव द टाइम लेफ्ट ओवर फॉर 4 मार्क्स प्रॉब्लम्स एंड देन टू 1 मार्क्स प्रॉब्लम। रफ वर्क के लिए जैसे मैंने बताया, आपको किसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया है और आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है कोन का, या आप बोलिए कोन के अंदर आपका जो है स्फीयर रखा हो उसमें वहां पे आपको कुछ करना है, तो इट विल टेक 15 to 16 स्टेप्स। तो जो रफ वर्क वाला पोर्शन है वो साइड में आप पेंसिल से या पेन से कर सकते हैं, एंड उसके बाद हाइलाइटेड जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि 2x + 3 = 5 लिखें, जस्ट स्ट्रेट अवे राइट x = this। एग्जाम से 10-15 डेज पहले हम रिवीजन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखें? आप पहले कैलकुलस वाला पोर्शन करिए। यू मेक अ पॉइंट कि आप जो जहां भी स्टडी टेबल आपकी है वहां ही नोट डाउन द चैप्टर्स। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस है, कौन से में नहीं है। सपोज किसी बच्चे को कैलकुलस में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी बच्चे को वेक्टर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसको कहां पे कॉन्फिडेंस है, कहां पर नहीं। अब सपोज कीजिए कि आपको सपोज ABC 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, योर रिवीजन फ्रॉम जस्ट 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आप मेक अ पॉइंट, लाइन अप करिए कॉन्सेप्ट को, पहले वो कॉन्सेप्ट करिए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले वो चैप्टर्स टेकअप करिए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ABC are the topics in which you don't have the confidence. Then C, D, E, F are the topics
in which you have somehow 80% confidence या 20% डामाडोल, तो आप उनको रखिए। एंड देन दोस टॉपिक्स जहां पर आपको शॉर्ट पता है, आई विल मैनेज, तो उनको रखिए। उसी के अकॉर्डिंग में आप फिर मैनेज करिए। ग्राफिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ग्राफ प्लॉट करने को आते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स यूजुअली दे लूज आउट द मार्क्स? देखो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का आपका क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि we are solving two equations, suppose let's say 2x plus 3y equal to something and another equation is there, तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में ये तो पता है कि कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बिफोर हैंड मालूम है, तो while plotting the graph, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाएगा कि where we are getting the intersection point, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपको ग्राफ प्लॉटिंग में हेल्प मिलेगी। यू मस्ट नो कि दो लाइंस अगर आप प्लॉट कर रहे हैं या जो भी आप कॉन्वेक्स फिगर बना रहे हो उसके वर्टिसेस कहां पर आ रहे हैं, वर्टिसेस का आपको एक नीट एंड क्लियर आइडिया होगा, देन यू शुड गो टू द ग्राफ। ये नहीं कि आपने सीधे क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन उठा के आपने प्लॉट करना शुरू कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है आपका वर्टेक्स कहीं दूसरी जगह पे आ जाए, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता है कहां से आना है पॉइंट, तो उन पॉइंट्स पे ध्यान रखें कि सपोज अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट आना है और माइनस 17 का माइनस 32 आना है और कौन से दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे आना है, तो अगर हमें वो चीज बिफोर हैंड आइडिया होगा तो वी कैन मेक श्योर कि हमारा ग्राफ गलत नहीं होगा। तो कुछ इन सब बातों मतलब एक प्री स्टडी क्वेश्चन का करना बहुत जरूरी है कि भाई क्वेश्चन हमें क्या कराना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसका एक आपका प्री ऑक्युपाइड माइंड होना चाहिए कहां पर क्या आने वाला है। इन दैट वे यू कैन डू वेल इन दैट पोर्शन। सर जाते जाते कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए टिप्स। व्यूअर्स, एक मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन में मिलता है जिसमें क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सही करेंगे गलत करेंगे, तो डोंट लेफ्ट दैट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, यू जस्ट डू दैट ऑल, आप उसको लिखिए, जितना बहुत भी आपको आइडिया आता है आप उसको लिखिए, डोंट मतलब आप ब्लैंक मत छोड़िए किसी प्रॉब्लम को, डोंट लेफ्ट ब्लैंक द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप ब्लैंक लिख देंगे यू विल श्योर शॉट गेट 0 मार्क्स। तो आप क्वेश्चन में जितना भी आपको समझ में आता है उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना, उलझुल बातें मत लिखिए, विद कंसर्न टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आप वहां पे बातें लिखिए। Mathematics is definitely not a subject to be scared of. It is the king of arts and queen of science. All you need to do is conquer the fear. Friends, we are sure हमारे आज के सेगमेंट में आपको काफी हेल्प मिली होगी। Thank you sir for being a part of our show and thank you all for sharing your doubts and problems with us. So good luck for your exams, do well and do keep your mind relaxed.